Now, viewers, the Women's Reservation Bill has failed the test in Lok Sabha. Remember, 298 MPs voted in favour, which was significantly short from the 352 mark, the two-third majority mark it needed to be passed. The opposition celebrated this with 230 MPs voting against. Of course, the larger question that pertains and the bottom line is that 33% reservation for women is yet to be a reality. Let's in fact cut across to the Lok Sabha live and listen in what's taking place right now. 2026 को वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास के विषय पर 193 के अधीन एक अल्पकालीन चर्चा की गई। ये चर्चा 6 घंटे 7 मिनट तक चली। इसमें 36 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर के साथ संपन्न हुई। दिनांक 16 अप्रैल 2026 को आसन द्वारा सदन में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर द्वारा सफलतापूर्वक प्रथम क्रिटिकलिटी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री का, नेता प्रतिपक्ष का, विभिन्न दलों के नेताओं का और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में समृद्ध एजुकेशन को उनके द्वारा प्रदान की सहायता के लिए भी धन्यवाद देता हूं। अब सभी माननीय सदस्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान पे अपने स्थान पर खड़े होंगे। Besides, the House also held substantial discussions on the working of two key ministries of the government. The House also took note of the suo motu statements made by the Minister of Commerce and Industry on India-US bilateral trade agreement and the Minister of External Affairs regarding the situation in West Asia. The statements made by the Honorable Prime Minister on the ongoing West Asia conflict and the challenges faced by India, especially to meet its energy requirements as a result of it, presented the evolving situation in a proper perspective and underlined the need for a collective resolve of the nation to face it. I am pleased to note that as many as 50 private member bills were introduced during the session. I am delighted to share that on 94 occasions, honorable members spoke in 12 regional languages included in the 8th schedule to the Constitution. Overall, the House functioned for a total of 157 hours and 40 minutes. The productivity of this session stood at 109.87%. During the session, we had the opportunity to raise 117 questions, 446 zero-hour submissions, and 207 special mentions. Honourable members, this session also witnessed the re-election of Sriman Harwanji as the Deputy Chairman of Rajya Sabha for third time. The Honourable Prime Minister, along with leaders and the members across the political spectrum, felicitated Sri Harwanji on his re-election. I appreciate the cooperation extended by all in transacting the business of the House and extended my appreciation to the Honourable Deputy Chairman, Sri Raghuvanshi, and the members of the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House. I also thank the Leader of the House, the Leader of the Opposition, Ministry of Parliamentary Affairs, the leaders of various political parties and groups, and all the honourable members for their kind cooperation extended by them.
I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff in ensuring that the session runs smoothly. I also thank the print and electronic media for covering the proceedings of the House and keeping the country informed. And once again, I request all the honorable members, 267 ruling has been already done. Kindly please don't take it and waste the time. When it is really required, by taking the consents of the entire House, we will go for it. The House stands. Now the national song. Viewers, both houses standing for the national song at the moment. My colleague Manohar Kesari is live with us from the Parliament. Manohar, there are certain reports coming in at the moment that NDA women MPs will be protesting in the Parliament premises very, very shortly. But 1 second before I come back to you, let's listen in what's taking place at Lok Sabha. I believe it has now been adjourned. The Lok Sabha has now been adjourned at this very moment. The announcement was made by Speaker of the Lower House, Om Birla. Remember, the special session in the Lok Sabha has now concluded. We also have the special session in the Rajya Sabha on our screens at the moment. They've all stood up for the national song. Manohar, over to you. We of course saw the women MPs from the NDA camp protest last night, holding placards, holding banners, black banners, in fact emphasizing that all the opposition parties in rejecting this bill are anti-women. Are we expecting a protest, a similar such protest today in the premises of the Parliament as well? देखिए, बिल्कुल सुबह उन्हें प्रोटेस्ट करना था, लेकिन अब दोनों सदन अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गया है। तो ऐसे में अब जो बीजेपी और एनडीए की महिला सांसद हैं वो कुछ ही देर में प्रोटेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि कल रात में तेज बारिश होने की वजह से प्रेरणा स्तर प्रोटेस्ट करते हुए नहीं जा सकी थी। बीच से ही वो वापस मकरद्वार आ गई थी और लगातार उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने जो है इस बिल को गिराया है, वो दूसरी पार्टियों के दबाव में आकर के इस तरह से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और जिसका नतीजा ये रहा कि महिला आरक्षण से जुड़े हुए जो 3 बिल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन 131 की बात हो, डिलिमिटेशन की बात हो, या फिर हम यूटी अमेंडमेंट लॉज की बात करें, और इसका खामियाजा जो है सो उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि 2029 में बीजेपी के सांसद रवि किशन ने हमारे साथ बातचीत में कहा कि हम 2029 का चुनाव जो है सो भारी मतों से ज्यादा ऐतिहासिक जीत के साथ जो है सो पार्लियामेंट में आएंगे और इस बिल को पास कराएंगे। लेकिन इसका खामियाजा जो है सो अपोजिशन को झेलना पड़ेगा, और अभी कुछ देर के बाद ही तमाम महिला सांसद जो है सो प्रेरणा स्थल में गांधी प्रतिमा तक जा सकती हैं। जी, absolutely. We've heard some of your conversations with the members of Parliament on ground as well. Manohar, I'd like to thank you for, of course, joining us from the premises of the Parliament, sharing all those updates with our viewers. We will continue to come back to you for further updates over the course of the day, including your conversations with the MPs from the ruling bloc and from the opposition. In the meantime, let's in fact go across to the ground to gauge the pulse of the people, to gauge the pulse of the voters, including the women voters. My colleague Rainik Datta is joining us live from West Bengal. Rainik, over to you. What's the pulse of the people? What are the women on the ground telling you? And how is the mood like? Because of course elections are going to take place very, very shortly. The assembly elections and the first phase is on the 23rd, the second on the 29th. The BJP now, as many analysts are saying, has practically received ammo from the opposition. Take our viewers to the latest. देखिए एक हफ्ते के अंदर ही पहला चरण का जो चुनाव वो होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, मगर इसी जगह पर जो वुमेन संरक्षण बिल था उसको लेकर जो चर्चा वो जोर जोर से चालू हो चुका है। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से भी जो मैनिफेस्टो पेश किया गया था, उस मैनिफेस्टो में भी 33% महिला संरक्षण का बात बीजेपी की तरफ से किया गया था, और 33% महिला रिजर्वेशन का जो बात वो पहले बार से बीजेपी का एक मुद्दा बना हुआ था इस चुनाव में। और महिलाओं के ऊपर लगातार जो
फोकस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था उसमें ये एक बड़ा हथियार बीजेपी की तरफ से था। मगर दूसरी तरफ कल जब ये संसद में ये बिल जब रिजेक्ट किया गया उसको लेकर भी महिलाओं के मन में भी बहुत सारे क्षोभ देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं की तरफ से इस बिल को लेकर बहुत उत्साह था। महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा था कि ये महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है ये होना चाहिए, महिलाओं को अलग से सुविधा जो है वो मिलना चाहिए। और कल जब ये रिजेक्ट हो गया उसके बाद से बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ हम लोग बात किए थे जो जिनकी तरफ से स्पष्ट कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल कारण में, पॉलिटिकल रीजन में महिलाओं को वंचित किया जा रहा है, सुविधाओं के सुविधा मिलने से महिलाओं को वंचित किया जा रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए एक तरफ एसआईआर का मुद्दे को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हथियार बनाया जा रहा था और अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है उसमें स्पष्ट है कि एसआईआर के साथ साथ ही ये महिला संरक्षण बिल को भी एसआईआर के साथ जुड़ने का जो कोशिश वो टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया गया था उस पोस्ट में एकदम स्पष्ट तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि एसआईआर में महिलाओं का नाम बाद जो दे रहे हैं वो लोग चाह रहे हैं कि महिला संरक्षण हो, यानी बीजेपी को किसी भी हालत पर घेरने का कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मगर पश्चिम बंगाल का जो महिला है, क्योंकि देखिए 2021 का अगर बात किया जाए, 2024 का चुनाव का अगर बात किया जाए तो उसमें महिला वोटर का संख्या सबसे ज्यादा था, 60% के ऊपर महिला वोट दिए थे पश्चिम बंगाल चुनाव में। तो महिला वोटर्स जो है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। जो महिलाओं के साथ हम लोग बात कर रहे थे उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल रीजन में महिलाओं का जो अधिकार वो छीना जा रहा है, महिलाओं के अधिकार को नहीं दिया जा रहा है। पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज है उनके तरफ से उनका महिला का अधिकार को छीनने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और एक इशू तैयार करने का जो कोशिश वो भी किया जा रहा है। कुल मिला के बोल सकते हैं कि ये जो महिला आरक्षण जो बिल है जो कल संसद में रिजेक्ट किया गया था 2/3 वोट ना मिलने पर जिसको रिजेक्ट किया गया था, जिसके खिलाफ में ऑपोजिशन जो इंडी गठबंधन उनके तरफ से जो वोट दिया गया था वो भी इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल चुनाव में एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि इसमें और एक कारण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में सेंट्रल लेवल में अगर देखा जाए तो उसमें इंडी गठबंधन में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीआईएम सब एक साथ होकर ये बिल के खिलाफ में वोट दिए थे। मगर पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, वो अलग अलग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इन लोगों के खिलाफ में। यानी किसी भी जगह पर ये इंडी गठबंधन जो है वो पश्चिम बंगाल में काम नहीं कर रहा है। तो इसी जगह से सब लोगों के सवाल उठ रहा है और बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली में जो लोग गठबंधन कर रहे हैं वो बंगाल में वोट काटने के लिए, बीजेपी का वोट काटने के लिए इस तरीके का हरकत जो है पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं और इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से और एक मुद्दे को सामने लेके आया जा रहा है। यानी एक तरफ बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, ये लोग महिला विरोधी है, इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार करने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन, पश्चिम बंगाल में भी इंडी गठबंधन है, ऐसा ही एक स्टेज भी बीजेपी की तरफ से तैयार करने का कोशिश किया जा रहा है। और इसी बेसिस पर आज बीजेपी की तरफ से 2 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, जिसमें पब्लिक मीटिंग में भी बीजेपी का इंटरनल सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पब्लिक मीटिंग में भी इस बार जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी is set to up the ante and try to corner the TMC on this. Renik, I'd like to thank you for joining us live from the ground. Of course, you've been covering what the people have been saying. Before I go across to my colleague Anand Singh, who's joining us live from Tamil Nadu, who's also on the road tracking what the leaders are campaigning, let's in fact listen in to what Kiran Rijiju, Union Minister, is saying at the moment. सर, जिस तरीके से कल महिला बिल का विरोध करके गिराया गया, किस तरीके से देखिए, क्या कहना चाहिए? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं